جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसीयत दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन नाजरीन इस टाइम में मौजूद हूं मुल्तान मदीनतुल औलिया मुल्तान कचहरी चौक दे जिथे अकलियत दे मैं दावा दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लिखा हुआ है, लेकिन हमें जब कहते हैं कि आइन में जगह है लेकिन अमल दरामद की आज़ादी मेरे ईमान की आज़ादी मेरी जो बच्चियों के साथ जबरी तब्दीलियां मजहब की बात है वो सीने की बूंद गिरेगी, वहीं पर हमारा खून का कतरा भी गिरेगा। कदम बढ़ाओ अभी जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एहतजाजी मुजाहरा किया वेंदा पिए और इन्हां लोगों नाल गुफ्तगू भी करे सो इन्हां कोल जान सो कि इन्हां दे मुतालबात क्या है और क्या आखना चाहंदे नाज़रीन सरल आबिद चांद मसीह साहब मौजूद हैं जेडे कि एक क़यादत को लीड करदे पे इन्हां दे कोल जान सो कि आज दे एहतजाजी मुजाहरे दा मकसद क्या है, क्या क्या मुतालबात हैं, क्या चों नहीं निकले लोग, ज़हनी तौर ते जंगलों चों नहीं निकले लोग, ताइयों खून खराबा हाले बाकी है। हुण तीकर मैं लखां वारी मर चुकिया पर दुनिया लई मरना हाले बाकी है। जिस मसले तो वखरा देश बना गए जे बाबा जी वो मसला हाले बाकी है। ख़वातीनो हजरात, आज का दिन यहाँ कचहरी चौक पर आज फिर अक़लियतों के लिए उस अहद की तजदीद का दिन है जिस दिन में बानिए पाकिस्तान ने हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों के सिला में ये यकीन दिलाया था कि ये धरती, ये खित्ता तुम्हारे लिए अमन की अलामत होगा, ये खित्ता, ये धरती तुम्हारे लिए सुख का बायस होगा, ये धरती, ये खित्ता तुम्हारी बेटियों के लिए इज्जत का बायस होगा, ये खित्ता, ये धरती तुम्हारे सियासी हकूक के लिए, तुम्हारे लिए तमाम उन जिंदगी के शोभाजात के मौक़ों के लिए बराबर का होगा। लेकिन ख़वातीनो हजरात, आज मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तख्लीक का मकसद आज तक इस मुल्क के ठेकेदारों को समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान की तख्लीक का मकसद क्या था। बेशक पाकिस्तान की तख्लीक का मकसद इस खित्ते में उन सारी नाइंसाफियों का अजाला था जो मुतहिदा बर्रे सगीर में जिनका सामना आज की इस मुल्क की अक्सरियत को था। आज वही दौर, वही वक्त दोबारा दोहराया जा रहा है कि आज हम किसी भी
زندگی کے شعبے میں محفوظ نہیں ہیں، تعصب ہی تعصب ہے، ہر طرف استحصال ہی استحصال ہے، اقلیتوں کی محرومی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی عزتیں محفوظ ہیں نہ ان کے ادارے محفوظ ہیں، نہ ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، اور نہ سب سے بڑھ کر اور نہ ان کی بستیاں محفوظ ہیں، اور نہ ان کی بیٹیاں محفوظ ہیں۔ خواتین و حضرات، کب تک چپ بیٹھیں گے؟ پاکستان میں اقلیتوں نے ہمیشہ اپنا رول مثبت طور پر اس ملک کی ترقی کے لیے ادا کیا ہے، وہ تخلیق پاکستان ہو، وہ پاکستان کی تحریک ہو یا پاکستان کی تعمیر ہو، ہر دور میں اس ملک کی وفادار اور محب وطن اقلیتوں نے پوری تندہی سے، پوری وفاداری سے اپنا رول، اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی کو ضرورت پڑی لہو کی، تو اس دھرتی کے اقلیتی شہیدوں نے کبھی اس بات سے دریغ نہیں کیا کہ اس ملک میں یہ وہ خطہ ہے جس کے لیے میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں، یہ وہ خطہ ہے جس کے لیے میں شہید ہونے جا رہا ہوں، میرے ملک، میرے لوگوں کے لیے یہ خطہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج اقلیتیں دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے حکمرانوں کو کہ کیا وہ قائد اعظم کے وہ سارے فرمودات بھول چکے ہیں؟ کیا انہوں نے پاکستان کی تاریخ کو کبھی نہیں پڑھا کہ پاکستان کی تخلیق میں اقلیتوں نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمات کے سلسلے میں تحریک پاکستان کے ان سارے قائدین نے بانی پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جدوجہد میں حصہ لیا اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ہم زیادہ دیر برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کی اقلیتیں جاگ چکی ہیں، ملک کی اقلیتیں اپنے حقوق کو جان چکی ہیں، ملک کی اقلیتیں اپنے استحصال سے، محرومی سے اور ان ساری ناانصافیوں سے واقف ہیں۔ ہم کبھی مزید نہیں دے سکتے، ہم یہ کہیں نہیں دیکھ سکتے کہ ہماری عزتیں مزید پامال کی جائیں، ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ اسمبلیوں میں ہمارے نام نہاد غیر جمہوری، غیر سیاسی نمائندگان کو آمریت کا رول ادا کرتے ہوئے فرد واحد ان کو سلیکٹ کر کے تو اسمبلی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی اقلیتوں کے لیے قانون سازی کا عمل رک چکا ہے۔ میں آپ کو یہ ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار سندھ اسمبلی میں 2015 میں مائنورٹی پروٹیکشن بل پاس کیا اسمبلی نے اور گورنر نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور پھر نیشنل اسمبلی میں 2020 میں بل پاس کر کے سینٹ سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ اقلیتوں قصور کیا ہے؟ اقلیتوں کیا یہ چلو مان لیا یہ دوسرے درجے تیسرے درجے کے شہری ہیں، لیکن یہ یہاں کے باسی ہیں، انہوں نے یہاں مرنا ہے، ان کی قبریں یہاں موجود ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں یہاں موجود ہیں، ہم نے بھی یہاں دفن ہونا ہے۔ اس لیے خدا را اس جبر سے باز آئیں، اقلیتیں اس دھرتی کا خمیر ہیں، یہ مزید برداشت نہیں کرنے والی ہیں کہ مزید ظلم و جبر روا رکھا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں سارے ایوانوں سے
कानून नाफिज करने वाले इदारों से, सारी जुडिशरी से कि अक़लियतों के साथ इंसाफ किया जाए। जब कभी भी हम जो अपनी जुडिशरी का, अपने इंसाफ फराहम करने वाले इदारों की बेहिसी देखते हैं, अक़लियतों के मामले में बेहिसी देखते हैं, तो बेख्तियार हम बानी पाकिस्तान की रूह को बुलाते हैं। मैं बानी पाकिस्तान की रूह को हाजिर करता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ कि बानी पाकिस्तान बता कि ये मुल्क, ये खित्ता जिसमें मेरे बावजदाद ने भी इस तहरीक में तेरे साथ शाना बशाना खड़े होकर हिस्सा लिया था, उसकी तख्लीक का ये मकसद था। हम मुतालबा करते हैं और मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की अक़लियतें अपने हकूक़ को मनवाने के लिए अपने लिए जायज़ और मुअस्सर कानून साजी के लिए सरबकफ हो चुके हैं। अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, चौकों पर निकलेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे, यहाँ तक कि हमारे वो तमाम मसाइल, हमारे वो तमाम की हकूक़ की बजावरी जब तक मुमकिन नहीं हो जाती। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान में यौम अक़लियत मनाया जा रहा है। ऐवानों में केक काटे जा रहे हैं तो किसी जगह पर ऑल इज वेल के नारे लगाए जा रहे हैं। काबिल एहतराम ख़वातीनो हज़रात, आज का तारीखी दिन पाकिस्तान की अक़लियतों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। ये वही दिन है जब बानिए पाकिस्तान ने इस खित्ते की असल वारिस अक़लियतियों से ये अहद बांधा था। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये अहद क्या था। इस खित्ते पर आबादों पिसे हुए तबकात के लिए आसानियों का अहद था, मसावी हकूक़ की बजाय आवरी का अहद था, अवामी रियासत का और सबसे बढ़कर ये अहद था कि यहाँ पर बिला रंगो नस्ल, अकीदत व मजहब और ज़ात व पात में बराबरी के हिस्सेदार होंगे। काबिल एहतराम ख़वातीनो हज़रात, इसी अहद की तरतीब के लिए PMDP के कारकुनान व ज़िम्मेदारान आज अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। मैं जब भी बानी पाकिस्तान के इन इक़बाल पर गौर करती हूँ तो इन इक़बाल के बरक्स हर तरफ नफरत, तफरीके, तेरा मुल्क मेरी मुल्क, तेरी रियासत मेरी रियासत, तेरी धरती मेरी धरती, काट दो मार दो जैसी आवाज़ें हर तरफ से सुनाई देती हैं। काबिल एहतराम ख़वातीनो हज़रात, यहाँ तक कि हमने मज़ाहिब जो इंसानों की भलाई और आसानियों की बात करते हैं, हमने अपनी इस धरती माँ को मजहब के नाम पर लहूलुहान कर दिया है। आए रोज मुल्क की अक़लियतें इबादत खानों से लाशें उठा रही होती हैं। मैं मुल्क के ठेकेदारों से पूछती हूँ कि पाकिस्तान की तख्लीक का यही मकसद था। आज मुल्क का आइन अक़लियतियों से ताज़ब की ज़ुबान में बात करता है। अक़लियतियों के लिए कानून साजी का अमल मजहबी और दहशतगर्दी की नज़र हो चुका है। यही वजह है कि आज अक़लियती बेटियों की इज्जतें पामाल की जाती है। अक़लियती बादशाह है और बस्तियाँ चलाना आम सी बात हो चुकी है। हर तरफ जुल्म जबर के बावजूद मुल्क की अक़लियतें मुल्क के साथ वफादार और मुहब्बे वतन हैं। धरती माँ से वफादारी इस बात का सबूत है कि अक़लियतें इस धरती की असल वारिस हैं। आए रोज नए से नए सानिया हमें बानी पाकिस्तान
मस्जिदों में जाने के लिए, आप किसी भी इबादतगाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं और इस मुल्क में बतौर शहरी बराबर के हिस्सेदार हैं। हम मुतालबा करते हैं कि बानी पाकिस्तान की 11 अगस्त की इस तकरीर को आइन का हिस्सा बनाया जाए और इसका नफाज मनोमन अमल में लाया जाए। आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया। पाकिस्तान PMDP आबिद जान, बहुत शुक्रिया। PMDP के मैदान में हैं। कौन सा ऐसा अमल है जो इस मुल्क की मासूम और बेज़रर अक़लियतों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर करता है? मैं जब भी इस मुल्क में रहने वाली अक़लियतों पर, जो इस धरती की असल वारिस हैं, हालात पर गौर करती हूँ तो मेरे एहसासात साकत और जामद होकर रह जाते हैं और फिर मैं इस मुल्क की तख्लीक के अमल को जहन में लाती हूँ। अक़लियती कायदीन की तहरीक पाकिस्तान में खिदमात और कुर्बानियों को याद करती हूँ। अक़लियती पाकिस्तानियों की बानी पाकिस्तान के अक़वाल जो इस मुल्क की असास होने चाहिए थे, उसको हमने पसे पुश डाल दिया है। यही वजह है कि आज मुल्क में कत्लो गारत, गुर्बत, महरूमी और इस्तेहसाल का बाजार गर्म है। हुब्बे वतन अक़लियतों की ना इज़्ज़त महफूज है और ना ही इबादत गाहें। मैं पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तहलीक का मकसद मुल्क में अक़लियतों की इज़्ज़तें, इबादत गाहें और अमलाक को महफूज बनाया गया था। आज मुल्क में अक़लियतें बेचारे मददगार हैं। मुल्क का आइन, अदारे, अदलिया, पार्लियामेंट सब खामोश तमाशाई बनकर बैठे हैं। महरूमी, इस्तेहसाल हमारी माओ, बहनों, बेटियों की इज्जतें लुटता हुआ देख रहे हैं। मैं पूछती हूँ, क्या मजबूरी है जो मुल्क के सब ऐवान, अदारे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, नाकाम हो गए हैं? यकीनन ख़वातीनो हज़रात, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। साजिश यही है कि अक़लियतों को इस खिते से मसख कर दिया जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि PMDP इस एजेंडे को कभी भी कामयाब होने नहीं देगी, क्योंकि PMDP एक तहरीक का नाम है। इसका मंशूर इस खिते पर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। मैं मुतालबा करती हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि फौरी तौर पर अक़लियतों का बिल पास किया जाए ताकि अक़लियती बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज हो सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। 11 अगस्त को हम इसलिए मनाते हैं और याद करते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 11 अगस्त 1947 को अक़लियतों के साथ कुछ वादे किए थे और आज वो पूरे नहीं हो रहे। मैं ये चाहता हूँ और हमारी पार्टी का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनका इज़ाला किया जाए, जो की जा चुकी हैं। और आइंदा के लिए मेरी हुकूमत वक्त से और तमाम जो पाकिस्तान के करता धरता हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि हमें भी पाकिस्तान के बराबर का शहरी तस्लीम करें। खुद तो यहाँ के लोग यूरोप में जाके वहाँ पे ये परदेसी हैं और वहाँ पे ये पूरे हकूक़ की डिमांड करते हैं और अपने इनको मनपसंद चीज़ें वहाँ पे चाहिए जाके दियारे गैर में। और हम तो यहाँ के बासी हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं। हमें आप यहाँ पे जन देने के लिए तैयार नहीं हो और ख़ुद आपको जनाब VIP माहौल में चीज़ें चाहिए, हमें आप देसी चीज़ें देने को तैयार नहीं हो बिल्कुल। और
जो यहाँ पे जबरी मजहब तब्दीली हो रही है, अकलीती खास तौर पे ये क्रिश्चियन और हिंदू बच्चियों के साथ जो किया जा रहा है, किसी भी 13 साल की बच्ची को उठाएं, उसका नाम चेंज करो, उसका वास्ता नहीं है उसकी फैमिली के साथ। ये कहाँ का इंसाफ है? ये बच्चे कोई जैसे ये मुर्गियों वाले अंडे हैं जो फार्म, ये ऐसे पैदा होते हैं। माँ बाप का उनके पे कोई हक नहीं होता है कि जैसे ही कोई बच्चा मतलब जवान बच्ची है उसको अगवा किया जाता है, उसके साथ ज़िना किया जाता है, फिर जब अदालत का दबाव आता है कि उसको पेश करो तो उसका पुरानी डेटों में उसका निकाहनामा तैयार करके और उसका मजहब तब्दीली का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उससे बचते हैं वो। मैं इनसे पूछता हूँ कि इनकी आंखें नहीं है कि एक 13 साल की बच्ची है, उसको ये 40-50 साल का बंदा क्यों पसंद आता है भाई? ना वो उसके साथ पढ़ रहा होता है। ये पूरी एक कहानी तैयार की जाती है कि कोई बंदा पकड़ो और जिसके साथ उसकी बचपन की मांग शादी करने के लिए तैयार नहीं है, जिसको उसका चाचा अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी की भी बच्ची उठाए 13 साल की और निकाह पढ़ा के बीवी बना के पेश कर दे। 11 अगस्त 1947 को जो हमारे साथ वादे किए गए थे वो वैसे के वैसे ही हैं, वो लफ्ज़ी कागज़ों में कहे गए हैं, उनमें कोई भी मुतालबा अभी तक पूरा नहीं होता। तो हमारी हुकूमत बाला से आला से यही रिक्वेस्ट है कि हमें मसावी हकूक़ अदा किए जाएँ। बहुत शुक्रिया। बानी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया ताकि हम लोग जो हमारी महरूमियाँ हैं, जो हमारे साथ ज़्यादती हो रही हैं, हम उसको मिलकर सब जो है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें। मैं भी थोड़े दिनों पहले एक बात सोच रहा था कि किसी भी मुल्क में कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका असर पाकिस्तान में क्या आता है कि वो जो इंसिडेंट कोई किसी मज़हब के लोग से करते हैं तो उसका असर ये आता है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले शहरी हैं वो अगर क्रिश्चियन हैं तो उनके चर्चेस को पे हमला हो जाता है, अगर वो कोई हिंदू करता है तो उनके मंदिरों पे हमला हो जाता है। भाई हम तो पाकिस्तानी शहरी हैं, हम तो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, तो हमारा इसमें क्या कसूर है? अभी थोड़े दिन हुआ रहीम यार खान में आपने देखा कि वहाँ पे मंदिर को मिसमार कर दिया, वहाँ के रहने वाली कॉलोनी को पर ईंटें बरसाई गई। अभी थोड़े दिन हुए स्वीडन वाला वाकया हुआ तो मुझे एक खबर मिली कि खानेवाल में चर्च पे जूते मार रहे हैं चर्च को जाके। तो इसमें ये बताएं कि मज़हब का क्या कसूर है? एक आदमी ने अगर कोई इस तरह का शर्मनाक काम किया है तो वही कसूरवार है ना, उसमें उसके बाकी मज़ाहिब वालों का तो कोई कसूर नहीं है। तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा और मैं हुकूमत वक्त से ये इल्तमास करूंगा कि इन चीज़ों पर गौर करें और ये जो जत्था चला आता है इसको कौन शह देता है, तो इनको रोकने के लिए हम जैसे हम पाकिस्तानी शहरी हैं, बाकी पाकिस्तानी शहरियों का भी फर्ज है कि वो इस तरह के कामों को रोकें। तो मैं आज के इस जो जिसे हम कहते हैं कि अक़लियत मिनॉरिटी डे, लेकिन मैं कहता हूँ जब हम पाकिस्तानी शहरी हैं तो मिनॉरिटी कहाँ पे? मिनॉरिटी का मतलब होता है जिंदाबाद चेयरमैन आबद भाई, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, यहाँ लोग जितने भी खड़े हैं, हम सबको पता है कि हम किस लिए खड़े हैं। हमारा एक ही मुतालबा नहीं है बल्कि हज़ारों ऐसे मुतालबे हैं जो हमारी हुकूमत वक्त जिससे हम तकाजा करते हैं कि वो उनको पूरा करना ही नहीं चाहती। मैं आपसे हुकूमत वक्त से ये तकाजा करता हूँ कि हमारे मकसद को खुदा समझिए और इस पे अमल कीजिए। यहाँ पाकिस्तान में दो दो शहरियत नहीं चलेगी, यहाँ एक ही शहरियत होनी चाहिए और ये जो काला कानून बनाया गया है इसको ख़त्म किया जाए। हमारे जबरी नाबालिग बच्चियों की शादियाँ बगैर उनकी मर्जी से न की जाएँ। मैं कानून और आइन के पूरे तहफ़्फ़ुज़ रखने वाले तमाम अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें पाकिस्तानी शहरी समझा जाए। पाकिस्तानी शहरी सब बराबर लोग हैं। कायदे आदम की वो तकरीर जो 11 अगस्त को की गई थी उसके मुताबिक खुदा अमल किया जाए, हमारा यही मुतालबा है। शुक्रिया।
आबिद चांद साहब और तमाम नुमाइंदे मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन यहाँ मौजूद हैं। उन सब से मेरा एक ही मुतालबा है कि खुदारा ये जो अक़लियत का लफ्ज़ अक़लियत कहकर पुकारा जाता है, इस लफ्ज़ को ख़त्म किया जाए। हम सब पाकिस्तानी हैं और इस पाकिस्तान के शहरी हैं। पाकिस्तान बनाने में हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा हाथ है और जब तक हम आईने पाकिस्तान से ये बात नहीं निकालेंगे कि आज के ये मुतालबा करने वाले दोस्त हम सब तो मिलकर ये मुतालबा करते हैं कि आईने पाकिस्तान से वो शिकें निकाली जाए जो कि इम्तियाज पैदा करती हैं, जो कि हमें एहसास महरूमी का शिकार करती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि पाकिस्तान में सिर्फ उन लोगों का पाकिस्तान है जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए शहीदी कुर्बानी नहीं दी। हम सब लोगों ने पाकिस्तान के लिए, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के क़याम के लिए कुर्बानियाँ दी, तो हमें भी इन बातों का सिला मिलना चाहिए। पाकिस्तान का बिला इम्तियाज सदर पाकिस्तान भी अक़लियत से हो सकता है, यानी इन लोगों से, हम लोगों से हो सकता है। वज़ीर आज़म भी हो सकता है, गवर्नर भी हो सकता है। हर वो आला ओहदा जो कि इस मुल्क का आला तरीन ओहदा है, उस पर हर पाकिस्तानी का हक हासिल है। ये नहीं कि एक मखसूस मुसलमानों को या मखसूस लोगों को उसका हक हासिल है। पाकिस्तान बनाने में हम सब ने जब किरदार अदा किया, कुर्बानियाँ दी, तो पाकिस्तान का छोटा ओहदा हो, पाकिस्तान का बड़ा ओहदा हो, उन सब के लिए हम सब हकदार हैं और ये हक हम लेकर रहेंगे। कायदे तहरीक इल्ताफ हुसैन भाई ने बरमला इस बात का इकरार किया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमकेएम पाकिस्तान की वो जमात है जिसमें अक़लियत विंग ना है। हमारे अंदर, हमारी जमात के अंदर कोई अक़लियती विंग नहीं, हम सब बराबर हैं जमात में। हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में भी सब लोग पाकिस्तानी हो, बराबर हो, उनको बराबर हकूक़ हासिल हों। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक मरतबा फिर आबिद चांद भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हम सब लोग मुल्तान से तमाम सियासी कायदीन यहाँ इस एहतजाज में, इस मुतालबे में इस बात को हुकूमत पाकिस्तान और अरबाब पाकिस्तान को याद कराना चाहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त को क्या फरमाया था और तुम्हारा आइन, तुम्हारी बातें क्या कहती हैं। हम ये चाहते हैं कि कायदे आज़म की वो बात, उस पर अमल किया जाए और अगर आइन को, आइन पाकिस्तान 1973 के अंदर वो चीज़ें शामिल कर ली जाए तो मैं इस बात का यकीन करता हूँ और हमें ये यकीन है कि हम सब पाकिस्तान की तामीर को इतना, तरक्की को इतना बुलंद करेंगे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सरफरोश होगा। से यहाँ हाजिर हुए हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस रैली में हमारे साथ हैं और मैं बताता चलूँ कि ये एहतजाज नहीं है, हम अपने हकूक़ की बराबरी के लिए ये रैली कर रहे हैं। इस मुल्क में जो हालात हैं इस वक्त, अक्सरियत और अक़लियत दोनों ही बहुत माशी दबाव में हैं, लेकिन अक़लियत पर हमेशा से माशी के साथ साथ सियासी, आइनी और समाजी दबाव भी रहा है। तो हमारी ये रैली अवाने इक़्तिदार तक हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए है कि हम अक़लियतों पर समाजी, आइनी और सियासी दबाव को कम किया जाए, हमें भी जीने के लिए जगह दी जाए। ये मुल्क जितना अक्सरियत का है उतना ही अक़लियत का है। कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर के तनाजुर में और उन वादों के मुताबिक जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त को अक़लियतों के साथ किए, हम ये डिमांड करते हैं कि कार मुमलिकत में अक़लियतों को बराबर का हिस्सादार बनाया जाए। हमारी जो कौमी और सूबाई असम्बलियों में नशिस्तें हैं उनको बढ़ाया जाए आबादी के तनासब के लिहाज से, और इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए, सिलेक्शन सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। आइन में जितने तासुबात हैं
अक़लियतों को लेकर जो आला ओहदे हैं जिन पे कोई भी अक़लियती उम्मीदवार हो ही नहीं सकता, वो ख़त्म होने चाहिए। जबरी मज़हब तब्दीली पर पाबंदी होनी चाहिए और सबको इस पाकिस्तान में, इस प्यारे पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बगैर, तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बगैर और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए बगैर आज़ादी बेमानी है। पाकिस्तान